Hello everyone, welcome to all. In this lecture, we will discuss a new topic, that is force between two parallel linear conductors carrying current. Right? From unit 3, moving charges and magnetisms. Students, in this lecture we will see what is that. That is the when two current carrying conductors are parallel to each other, right? In this way, okay, at a distance r, right? So a force exhibit between these conductors, right? So what is the nature of this force and what is the magnitudes of this force, we will see in this lecture. Okay, so let's start. So let us consider there are two infinite long straight conductor carrying current I1 and carrying current I2, right? Carrying current I1 and carrying current I2, and this is the first conductor and this is the second conductor, right? And they are held parallel to each other at a distance r from are apart in the plane of paper, right? So students, in previous lectures we have studied when a current carrying conductor या current carrying wire is placed in any region, right? So it will produce a magnetic field around their surroundings, right? So in this figure, a magnetic field produced due to current through each conductor, like this, right? So what is the directions of this magnetic field? Yes, according to right hand rule, we can define the directions of magnetic field, right? Your thumb should be in the directions of current and the curling finger will show the directions of magnetic field. So due to first wire, the current is the inward magnetic field. Okay, the magnetic field is the inward magnetic field, and we will study या हमने सीखा है जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, लाइक दिस. ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड 1 B1, right? Okay, so due to this the magnetic field, right, the second wire is in the magnetic field, in uniform magnetic field. And in previous lecture also we have discussed when a current carrying conductor placed is uniform magnetic field, so it experience a force like this. ये अब ये आपका जो सेकंड वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये क्या करेगा, वायर एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज F. और फोर्स क्या होगा, F ऑन टू 2 to 1. अब देखो एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड किसका है, आपका जो सेकंड व फर्स्ट वायर है, राइट? तो जो सेकंड वायर में जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, फोर्स ऑन टू सेकंड वायर ड्यू टू 1, किसके कारण, 1 के कारण, राइट? तो हम इसको लिख सकते हैं द सेकंड, तो हम इसे इस साइड में लिख लेंगे, द सेकंड वायर is in the magnetic field of wire 1. So wire 2 experience a force which we will indicate the F21 is equals to IBL sin theta. Okay, which we have studied in previous lecture also. Okay, so what is the F21? F21 is equals to I. What is the I? I1, right? Force है ना, force तो I2 B1 और L sin. What is the theta? Theta is the angle between the length and between the magnetic field, right? So in this figure we can clearly see that the length of wire is the y in the y directions, y axis, and this is x and this is z, right? ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये z एक्सिस में है, आपकी z डायरेक्शन पे, एंड द लेंथ आपकी y एक्सिस में है. ओके, सो द theta will be 90, right? F21 is equals to
I2, B1 and L, sin 91, right? So equation number 1, right? This is the force on 2 due to 1, I2, B1, L1. And what is the B1, right? So as we know that magnetic field due to current carrying element at a distance r, at a point, any point, right? This at a point, this point. What is this? B1 is equals to magnetic field due to straight, due to infinite straight current carrying wire at a distance r. B1 is equals to mu 0 upon 4 pi 2 I1 upon r. Equation number 2. Put the value of magnetic field B, put the B1 in equation 1. So F21 is equals to I2, B1 value mu 0 upon 4 pi 2 I1 upon R into L. इक्वेशन नंबर 3. अभी इसको क्या करेंगे? अब जो आपका ये लेंथ है, राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या, वी हैव अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट? तो सो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इनफाइनाइट के लिए हम आप फोर्स फाइंड करना नॉट पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं है, राइट? सो हम क्या करेंगे, एक लेंथ ले लेंगे, ठीक है, ये एक यूनिट लेंथ ले लेंगे, तो यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग हम फोर्स को फाइंड करेंगे, राइट? तो सो आपको ये एल है, यहां पे ले आएंगे हम इसको, F21 अपॉन L इज इक्वल टू I2, इसको म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R. दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ on 2 due to 1. This is so, since this is force per unit length on second wire on 2 due to 1, right? Equation number 3. Now similarly we can follow the same procedure in the first wire, right? So इसको आप छाप लीजिए, ठीक है, पॉज करके छाप लेना, ओके। राइट, तो नाउ आपका जो सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B2, ठीक है। सेकेंड वायर भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B2, राइट, ओके। तो व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? सो वी कैन फाइंड द राइट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी outward, right? Locate the thumb in the directions of current, okay? Curling finger will show the directions of magnetic field. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। आपको पता है, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं डॉट से, राइट? सो दिस इज द आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड magnetic field. Outward magnetic field, right? Okay. So
अब आपका जो फर्स्ट वायर है आपका, ठीक है, फर्स्ट वायर इन द इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड वायर, ठीक है। तो सो सेकेंड फर्स्ट वायर इज एक्सपीरियंस ए फोर्स, राइट। सो द फर्स्ट वायर is in magnetic field is in magnetic field of second wire right. So first wire experience a force what is the magnitude of this force? F is equals to, F को अब क्या लिखेंगे, F on 1 due to 2, F1 on 1 on due to 2, ठीक है, is equals to mu 0 upon force IBL sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फोर्स है ना, हमने जो 1 2 लिखा हुआ है, इसमें किसी बुक में सीधे या तो 2 1 भी लिख सकते हैं इसको, बट आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। 1 2 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड वायर, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेकेंड वायर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था सेकेंड वायर ने प्रोड्यूस किया हुआ, सेकेंड वायर ने इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया हुआ है। सो फोर्स ऑन 1, फोर्स कौन सा वायर एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है आपका, फर्स्ट वायर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सो सेकेंड वायर आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, राइट। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ओके, राइट। सो व्हाट इज द थीटा, थीटा विल बी 90, थीटा भी 90 रहने वाला, क्यों, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, मीन्स प्लस एक्स एक्सिस में, और आपका जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है दिस इज अ वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्स और एक्स एक्सिस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, राइट। सो थीटा विल बी 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज द I, दिस इज I1, ठीक है। फोर्स ऑन I1 है ना, I1 B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B2, L साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है, साइन 90। So F12 is equals to I1, okay. तो what is the value of B2? अब B2 की वैल्यू हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, why? Because we know that in this प्रोसीजर, हमने इस प्रोसीजर में जब हमने B1 की वैल्यू फाइंड की थी तो हमने देखा था what is the value of B1? Magnetic field due to a straight current carrying wire at a distance R, what is this? Mu 0/4 pi 2I/R। सो यहाँ पर I क्या है, I1 है, तो सिंपली इसको लिख लेंगे हम B1 की वैल्यू, ओके। अभी L साइन 91, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर एट a distance R is B1 is equals to mu 0/4 pi 2I/R, ओके। इक्वेशन नंबर, तो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ B1 इन B2, तो ये I2 होगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन नंबर 4, पुट द वैल्यू ऑफ B2 in equation 1. So F12 is equals to I1 mu 0/4 pi 2I2/R into L. So we will find out the force per unit length. So L को हम यहाँ F12 L is equals to mu 0/4 pi 2I1 I2/R, right? This is the equation number 5.
and the force per unit length, right? Equation number 5. And this is a force per unit length on 1 due to 2, on 1 due to 2. Okay, so dear students, आपको जो फोर्स, आपके जो फोर्स एग्जर्ट हुई एक 1 2, इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स F12. कैसे, क्लियर है ना? फ्रॉम राइट हैंड पाम रूल, align the finger in the directions of magnetic field, so your thumb should be in the directions of current, तो palm will show the directions of force, right? इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, लेंथ अंदर ऊपर को है, करंट की डायरेक्शन, ये शो आपका जो फोर्स इस तरीके से ये दिखाएगा आपका, तो सो दिस इज द फोर्स, राइट? सो आप यहां से देख सकते हैं फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में, राइट? एंड द फोर्स का जो मैग्नीट्यूड से क्या है, म्यू 0.4 by 2I1 I2 upon R, म्यू 0.4 by 2I1 I2 R, same equal in magnitudes but opposite in directions, right? So we can express the same way. इसको छाप लेना पॉज करके, ठीक है, राइट? सो F opposite in direction F21 is equals to minus F12, but equal in magnitudes. अगर इनका मोड ले लेंगे हम तो ये इक्वल हो जाएंगे, F on 1 2. अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट? सो आपको इस जो ये इक्वेशन मिला है आपको, इससे आपको ये मीन्स आपको ये पता चला जो आपके जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, है ना, एज अ सेपरेशन बिटवीन आर, सो इट विल बी होल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज द न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है आपका, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्स है आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में बट इक्वल है, और आप ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो यू कैन क्लियरली सी दैट व्हेन द करंट इन द सेम डायरेक्शन द कंडक्टर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, राइट? So when there are two parallel kept a small separation are apart and carries current I1 and I2 in the same direction, they are attract to each other, right? So as you we can say, इससे आप क्या कह सकते हैं, जब आपकी करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो दो बोथ कंडक्टर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड व्हेन द अपोजिट डायरेक्शन, जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, और व्हेन द करंट of conductor are opposite in direction, when the current of conductor are opposite in direction, they are repel to each other, राइट? कैसे, अभी देखते हैं. आपका जो सेकंड जो वायर है इसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ठीक है? इसकी डायरेक्शन हमने चेंज करी डाउनवर्ड में I2 में, राइट? तो सो अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ओके, ड्यू टू फर्स्ट वायर तो सेम रहेगी, बट आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
ड्यू टू सेकंड वायर, जो सेकंड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइप की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। ये आपका करंट की डायरेक्शन है, ये कर्लिंग फिंगर क्या दिखा रहा है, आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अभी ये किस केस में, जब आपने करंट की डायरेक्शंस को अपोजिट किया हुआ है, राइट। तो सो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इसमें जो करंट की, अब फोर्स की डायरेक्शंस देखेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी, जस्ट बाहर को जाएगा फोर्स इस तरीके से, F12, कैसे, अलाइन द फिंगर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शुड बी द डायरेक्शंस ऑफ करंट। तो ये आपका जो पाम है, पाम दिखाएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। तो आपका फोर्स कहाँ है, F12, राइट। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट। इन दिस लेक्चर वी विल हमने क्या देखा, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं आपके, सेपरेशन बिटवीन आर, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शंस अगर सेम रहेगी तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अगर इनकी डायरेक्शंस, करंट की डायरेक्शंस अपोजिट रहेगी तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल होगा, इनमें, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, राइट। ओके, तो इजी कॉन्सेप्ट था। ओके, गुड बाय।